यस गुड मॉर्निंग क्लास। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ MSPWP ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਰੋਲ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਸਟੈਪਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। MSMEW ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨੀਅਰਲੀ 8% ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ GDP ਇਹਦੀ, ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ 45% ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ 'ਚ 40% 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ MSME ਨੂੰ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2006 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। And these enterprises primarily engage the production and manufacturing, the processing, presentation of goods and commodities। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ goods ਔਰ commodities ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ MSME ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ MSME ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ MSME ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਅ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ, ਬਾਏ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੋਡਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ MSS ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਸੈਸ ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈ MSS ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ तो कैटलाइज करो सेटिंग अप न्यू MS नो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, मैक्सिमाइज़ करो उसकी ग्रोथ एग्जिस्टेंस को, कितनी ग्रोथ में वो जा रहा है। थर्ड में है कि रिस्ट करो सिकनेस MSME दी कि किन्नी सैट हो रही है, वो लैवल ऑफ प्रोडक्शन किन्नी है, कि यह तो नहीं इनकम इन्फ्लुएंस तो नहीं करी पीपल की जिन्ना वो परचेज कर रहा। टू प्रोवाइड द बेसिक ग्रोथ ऑफ MSMEW इन द सैक्टर ऑफ इकोनॉमी। कहते इकोनॉमी लैवल भी चैक करो कि कितना है कितना नहीं है, कि कैटागराइजेशन तो नहीं आई हुई जोग्राफिकल फर्म्स जिन्ना बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर्स उन्होंने यूज़ करने लिए क्या वा स्मॉल च उन्ना ही हो रहा। अगर क्लास इनकम रेस अगर देख रहे हैं तो क्लास इनकम रेस ही देख रहे हैं, एथिकल प्रोविजनस तो नहीं लागू हो रही, क्लियर। सिक्स्थ में के इनहांस फाइनेंशियल एडवाइजमेंट भी अपनी दो, अरेंज करो रेगुलर अर्निंग सोर्सेज को, ठीक है। रेगुलर अर्निंग सोर्सेज जितना आप सोर्सेज यूज़ कर रहे हो उतनी रेगुलरली अर्निंग सोर्सेज देखो अरेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। एट्थ में कि मेक अवेलेबल ऑफ सब्सिट्यूट्स में क्या है कि अवेलेबल अपना सब्सिट्यूट्स चेक करो कि MSME में कितना है, ठीक है। नाइन्थ में है कि कंबाइन स्मॉल बिजनेस रूरल इकोनॉमी भी चेक करनी है। टेंथ में है कि इंक्रीज़ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन भी देखनी है, ठीक है, कि कितनी इंक्रीज़ हो रही है हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, कितनी नहीं हो रही है। 11th में कि कॉम्प्लिश करना है कि सेल्फ सफिशेंट एलिमिनेशंस की ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रहे, कोई भी मतलब ऊपर नीचे तो नहीं जा रही है। जितना लेवल ऑफ तो हमने स्पेसिफिक नीड्स रखी है उतनी है कि अवॉइड तो नहीं हो रहा कंपटीशन, बिकॉज लार्ज कॉरपोरेशंस में सेक्टर्स देखनी है हमने कि स्मॉल में कितने हैं एंड मीडियम में कितने हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम में क्या है कि कहते हैं कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वो है जो हम एग्जिस्ट करते हैं बोथ इकोनॉमिक एंड सोशली, बट माइक्रो इकोनॉमिक हमेशा मीडियम एंटरप्राइजेस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट रिक्वायर द हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं यूज़ होता है। कहते हैं कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जनरली लेबर इंसेंटिव पे आता है, बट डू नॉट रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल में भी इंश्योर करते हैं कि एनर्जीज़ के अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड होती है पीपल की। इट मे बी यूज अ प्रोडक्टिव पर्पस ऑफ इकोनॉमी एंड कैपिटल स्केयर रहती है, ठीक है। बट माइक्रो एंड स्मॉल में एंटरप्राइजेज में क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट हमेशा अंडरटेक रहता है विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज़ भी होती है इनकी प्रोडक्शन बोथ कब शॉर्ट और लॉन्ग में। मीन्स ये है कि अगर हमने एडवांटेजेस ली है माइक्रो की, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को हम यूज़ कर सकते हैं, क्लियर।
नेक्स्ट कहते हैं रोल क्या है इसका, कि अगर हमने माइक्रो में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हमने कंट्रीब्यूट करी है इन इंडिया में, ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट में कौन कौन सी हमने देखनी पड़ेगी। कहते हैं माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में अगर इंडियन अकाउंटिंग में हमने परसेंट यूज़ करा है 95, तो इंडस्ट्रियल यूनिट कंट्री का ही शो करेंगे एंड कॉन्ट्रीब्यूट कितनी होगी, ऑलमोस्ट 40% कॉन्ट्रीब्यूट होगी किसके ऊपर, ग्रोस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड के ऊपर, ठीक है, ये हमने टैक्स में भी पढ़े हैं। एंड 45% हमारा टोटल एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी है। विद इन द इंडिया हम चार्ज करेंगे कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में कितना आ रहा है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में कितना आ रहा है, ठीक है। सेकेंडली इसमें कहते हैं कि ट्रेडिशनली रूल्स भी देखो हाउस होल्ड के कितने डेवलप हो रहे हैं कंट्री में एंड कितने व्यू एक्सक्लूसिव इंगेज हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, बट देयर इज इंक्रीजली एविडेंस द रूरल हाउस होल्ड इज कैन बी अ हाईली वैलिड एंड मल्टीपर्पज़ सोर्सेज है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ सोर्सेज में इस यूज़ होते हैं, बट रूरल हाउस होल्ड कैन बी अ डू प्रोटेक्ट एंड वाइड द रेंज, ज़्यादा रेंज में, बट नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इसमें यूज़ की जाती है, जैसे लाइक वेजेस हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय वर्क कर ही जा रहा है तो दूसरा अनएम्प्लॉयड है, मतलब सेल्फ उसको है ही नहीं कोई वर्क कर रहा है, क्योंकि वेजेस भी उसको ही मिलेगी जो वर्क करेगा, ठीक है, मतलब जो हार्ड वर्क करेगा। बट कमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ये भी अलाउ होता है, ट्रेडिशनल रूरल एक्टिविटीज़ में भी होता है, फार्मिंग की एग्रीकल्चर लेबर पे भी यूज़ होता है, क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में इसका ये रोल है, क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में कहते हैं प्रोसेसिंग हो रही है, लोकली प्रोड्यूस्ड हो रहा है रॉ मटेरियल, ठीक है, रोज़ का रोज़ रॉ मटेरियल आ रहा है, बन रहा है, सेल हो रहा है फिनिश गुड्स के थ्रू। बट कहते हैं जब माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज सेव हो रही है, अर्न हो रही है उसकी फॉरेन एक्सचेंज, बट प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंपनी क्या कहते हैं कि गुड्स को प्रोसेस को लोकल रिसोर्सेज में प्रोड्यूस करा, मतलब लोकली हमने लोकल सोर्सेज में फॉरेन एक्सचेंज में हमने उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना अपनी गुड्स को। बट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज कहता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड होना चाहिए एक लोकल एंटरप्राइजेज को क्या करने के लिए, डिसीजन देने के लिए फ्रॉम द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में, ठीक है, क्योंकि अगर उसको उसके बारे में नॉलेज होएगी, स्किल होएगी, तो ही तो वो ट्रांसफ़र कर पाएगा अपना एंटरप्राइजेस। किस रेट में करेगा, स्केल रेट उसका कौन सा होना चाहिए, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है, कहते हैं कि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी उसने माइक्रो स्मॉल में एंटरप्राइजेज में क्लियर कर दिया, बट ब्रिंग मॉरली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, लास्ट में जितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है वो इक्वली डिवाइड हो, सोशली नेसेसरी एंड डिज़ायरेबल, ठीक है, ये नहीं कि किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करिए, किसी को हाई मिल रहा है, किसी को लो मिल रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए माइक्रो स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेज में, क्लियर। अब कहते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं, पहले डीमेरिट्स हैं कि लैक इकोनॉमिक स्केल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्केल इसका लैक है, हाई है, मतलब ये नहीं कि इंजॉय नहीं कर पा रहा, मतलब इकोनॉमिकली स्केल ही नहीं हमारे से परचेज हो पा रहा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग हमेशा इंक्रीमेंट ही हो जा रही है, देयर इज़ अ नो कॉस्ट कैन बी अवेलेबल टू अप्लाई ऑन दैट द लार्ज स्केल यूनिट्स, क्लियर। इसमें क्योंकि लिबरलाइजेशन पॉलिसी भी इसमें अडॉप्ट की जा रही है, बिकॉज ड्यू टू कि हमारे जो प्रोडक्ट है, जो हमारे प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं वो अर्ली क्या हो, प्रोड्यूस्ड हो विद स्मॉल स्केल यूनिट्स में, क्लियर। सेकंड है लो वेजेस मीन्स कम से कम वेजेस यूज़ की जा रही हैं थ्रू एसएस में, क्योंकि लेबर इंसेंटिव ही नहीं है, हमारे पास वर्कर ही नहीं है काम करने के लिए, तो हम कहाँ से वेजेस पे करेंगे, क्योंकि वर्कर्स अगर होंगे ट्रेंड होंगे तो प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, प्रॉपर अरेंज होगा एंड कॉमन अक्रेंसेस भी आएंगे, क्लियर। थर्ड में लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन में भी यही कहा था कि ड्यू टू द अगर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस हम यूज़ कर रहे हैं कैपिटल रिसोर्सेज में, तो SSI कहता है कि नॉट एबल इंसेंटिव मॉडर्नाइजेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज हमें अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। इनएफिशिएंसी में भी क्लियर है सेम कि लैक ऑफ स्केल्स, इकोनॉमिकली स्किल्ड नहीं है, अगर वर्कर्स ट्रेंड नहीं है, वर्कर्स हमें क्या करनी चाहिए, ट्रेंड रखनी चाहिए। ओवरक्राउडिंग में ओवरग्राउंडिंग में क्या था कि क्वाइट ऑफ इजी टू सेटअप ऑफ एसएसएस स्मॉल स्केल में कितना यूज़ हो रहा है वो देखना, बट कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी कम यूज़ हो, बट फॉर्मेलिटीज़ उसकी सिंपल हो, ये नहीं कि हमने फॉर्मेलिटीज़ उसकी कॉम्प्लेक्स करके कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई कर देनी है, हमेशा कैपिटल रिक्वायरमेंट एसएसआई में लो रखनी है, और फॉर्मेलिटीज़ भी इसकी सिंपल होनी चाहिए कि जो कस्टमर को ईजिली क्या आ जाए, समझ आ जाए, बट इट लीड्स टू इंसेंटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, इट मे बी लेड टू कट थ्रू द कंपटीशन होना चाहिए।
बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे कंपटीशन होना चाहिए एंड इफेक्टिवनेस जो होती है वो सर्वाइव करे फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर। या आज आपका सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गया, बट इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो हम कल करेंगे। अगर किसी को डाउट हुआ मैसेज कर देना एंड प्लीज़ अटेंडेंस अपनी मार्क कर दिया करो। थैंक यू क्लास।